In networking chapter, we will see what is network and what are the different networking devices. See, what is network? Network के help से, with the help of network only we can share the resources. Okay, we can access the pages with the help of network only. Okay, to get the information on the internet. Okay, we can use network. So with the help of network only, we can various things we can do. Okay, we can search the web page. Web page means that the page which is present on the internet. So there are various advantages of computer network. Okay, these are the advantages of computer network: file sharing, resource sharing, shared databases, remote access, internet access, fault tolerance. What is file sharing? See, file sharing means with the help of network, we can share the files, right? If the computer are interconnected with the help of a network, we can share the file from one device to another device. Okay, resource sharing, with the help of a network, we can share the resources such as hard disk ka resource we can share, printer resource we can share. Okay, so if you are sharing the resources like hard disks and printer, okay, so therefore it will reduce the installation और maintenance cost भी कम हो जाएगा if you are sharing the resources. Okay, then shared databases. See, if for the network, with the help of one server all the devices are connected, so database is shared. Okay, in server database is maintained. So with the help of server all the devices are connected. So with the help of network, we can share the databases also to multiple authorized users. Okay, with multiple authorized users, we can share the resources. Like एक सर्वर होता है, सर्वर से डिवाइसेस पूरे कनेक्टेड होते हैं, तो वो भी क्या है, जो डिवाइसेस सर्वर से कनेक्टेड है, दे कैन एक्सेस द resources which is present on the server. Okay, because all are connected with the help of network only. Then see, with the help of browser means Google Chrome or Internet Explorer or any browser, Mozilla Firefox, we are able to search on the internet. So whatever we are searching on the internet with the help of browser, we will get the results. Okay, so how we are getting the results? Because the data is stored in the database. Somewhere the data is stored. तो वो कहाँ पे data stored? It is stored on the server. Okay, so shared databases. Okay, network से जो भी devices connected है, they can access the data. Remote access. Remote access means, see, network allows users to remotely access the data and information which is not present on their own location. Means remote access means which is far away from the company location और उनके ओन जहाँ पे सर्वर है. ठीक है, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जहाँ पे सर्वर है वहीं पे तुम वो पेज एक्सेस कर सकते हो. नहीं, नेटवर्क अलाउ रिमोट एक्सेस. रिमोट एक्सेस मीन जो फार अवे लोकेशन में भी तुम अपने होम प्लेस पे और एनी अदर प्लेस पे कहीं पे भी नेटवर्क है, वहां से तुम पेज को एक्सेस कर सकते हो. दैट इज रिमोट एक्सेस. with the help of network see with the help of network we can chat, okay, through a WhatsApp or Insta or any other application. We can search on the internet. कैसे हो रहा है वो सब क्या है, रिमोट एक्सेस है. बिकॉज हम लोग वो लोकेशन में नहीं है जहाँ पे सर्वर है ये सब, बट फिर भी एक्सेस कर पा रहे. दैट इज रिमोट एक्सेस. ओके, तो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ही हो रहा है ये सब. इंटरनेट एक्सेस. इंटरनेट एक्सेस मीन्स, सी, इट प्रोवाइड एक्सेस टू द इंटरनेट. नेटवर्क के थ्रू ही हम लोग वी कैन गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट. with the help of network only we can get connected to the internet, right? We can search any type of data. Okay, we can search any type of data with the help of internet access. Then fault tolerance. Tolerance means by using network only
fault tolerance can be implemented, ठीक है, as a guard against accidental data loss. हम नेटवर्क के हेल्प से वी कैन फॉल्ट टॉलरेंस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी डेटा लॉस नहीं हो. यूजुअली मींस फॉल्ट टॉलरेंस कैसे हैंडल होगा? बैकअप ऑफ डेटा इज टेकन, ठीक है. इफ यू आर टेकिंग अ बैकअप ऑफ डेटा, अगर एक कॉपी हम लोग रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा इन केस ऑफ अगर डेटाबेस क्रैश हो गया या डेटा कोई भी डेटा लीक हो रहा है, तो बैकअप वी कैन कीप द बैकअप, राइट. Like normal in a day to day life, what we are storing contacts, ठीक है, in Gmail, in email only ना. तो अगर हमारे फोन में कुछ होता है, फोन रिसेट करते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या होगा? बैकअप अगेन तुम्हारा जो ये है, अकाउंट क्रिएट करो, सेम अकाउंट, एंड तुम्हारा बैकअप कहाँ पे? ईमेल पे है, ठीक है. तो कुछ भी लॉस नहीं होगा, तो एक बैकअप ही है. जो गूगल फोटोज है, ठीक है, गूगल ड्राइव है, एंड जीमेल में जो कॉन्टेक्ट स्टोर करते हो, एक टाइप का बैकअप ही है ना. इन केस ऑफ एनी फॉल्ट टॉलरेंस, मतलब इन केस ऑफ एनी फॉल्ट, कुछ भी डेटा अगर थोड़ा लॉस होता है, सिस्टम क्रैश होता है, तो एक बैकअप शुड बी टेकन. ओके. तो बैकअप यूजुअली बैकअप कहाँ कैसे लिया जाता है? यूजुअली बैकअप इज टेकन विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ओनली, नेटवर्क से ही, ठीक है. अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगा हमारे पास, तो वी विल नॉट एबल टू टेक बैकअप. ओके. Then inter-network processors. Inter-network processors means these are the different networking devices. With the help of these devices, only we can get connected to the internet. Okay, we can get connected to the network. ये devices क्या networking devices है. Hub, switch, router, repeater. Okay, these are the networking devices. See, what is hub? Hub, it is a simple network device. एक device है ये, ठीक है, that connects other devices to the network. अगर तुमको devices को connect करना है with network, तो ये device तुम use कर सकते हो. hub. Hub एक multi port है. Hub, it is a multi port. Multi port means that connects multiple wires coming from different branches. You can see the यहाँ पे जो connections है, sockets, ठीक है, यहाँ पे sockets 1 2 3, यहाँ पे multiple मतलब ये मल्टी पोर्ट है that connects multiple wires coming from different branches. हब से तुम क्या कर सकते हो? multiple wires you can connect that are coming from the different branches, ठीक है. but see, hub के help से it is a networking device that allows that connects other devices to the network, ठीक है. तो हब का पर एक डिसएडवांटेज ये है, it cannot filter data. It cannot filter data means, see, hub cannot filter data means जो भी डेटा उसके पास आएगा. hub cannot filter data means data packets are sent to all connected devices. इसका मीनिंग क्या हुआ? सी, जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस है हब में, सबको डेटा जाएगा. पर ऐसा नहीं होना चाहिए. सी, सपोज 4 डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क, ठीक है, ए बी सी डी, लेट्स अज्यूम ए बी सी डी 4 डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क. तो सपोज ए डिवाइस जो है वांट्स टू सेंड डेटा टू डी डिवाइस, डी को भेजना है. तो क्या होगा? हब के थ्रू इफ दे आर कनेक्टेड, ए से बी पे जाएगा, बी से सी पे जाएगा, सी से डी पे जाएगा. मीन्स ऑल द डिवाइसेस अननेसेसरी बी भी रिसीव करेगा डेटा, सी भी रिसीव करेगा. क्यों ऐसा हो रहा? बिकॉज ये जो नेटवर्किंग डिवाइस है हब, it cannot filter data means it hub cannot filter data, so that data are sent to all connected devices, जितने भी कनेक्टेड है. बिकॉज हब क्या है? इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है. ओके, हब इज नॉट, इट डज नॉट हैव इंटेलिजेंस, ठीक है. तो इससे क्या होगा? इनएफिशिएंसीज और वेस्टेज हो रहा है. इनएफिशिएंसी और वेस्टेज हो रहा है ना. क्यों ऐसा हो रहा है? हब, क्योंकि हब कैन नॉट रीड मैक एड्रेस. सी, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस होता है सिस्टम का. आईपी एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस ऑफ द सिस्टम, यूनिक एड्रेस ऑफ ईच डिवाइस, उसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस. आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. ये क्या है? यूनिक एड्रेस होता है डिवाइस का, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. वैसे मैक एड्रेस भी होता है जो एरिया वाइज होता है. मैक एड्रेस, सी, मैक एड्रेस, राइट हियर,
तो हब कैन नॉट रीड, मैक एड्रेस के जैसे एरिया वाइज होता है, ठीक है, तुम्हारे हार्डवेयर डिवाइस का सबका मैक एड्रेस होता है। तो मैक एड्रेस जो है, इट कैन, हब कैन नॉट रीड मैक एड्रेस, देयरफॉर क्या होगा, इट विल ट्रांसफर डेटा टू ऑल द कनेक्टेड डिवाइसेस, जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है, hub cannot read MAC address, therefore it will transfer data to all the connected devices and only correct device will copy the data. Correct device will copy the data means अगर A को D को भेजना है तो वही डेटा कॉपी करेगा D, ठीक है, पर डेटा सबके पास जाएगा, B के पास भी जो भी कनेक्टेड है, C के पास भी जाएगा, बिकॉज हब कैनॉट फिल्टर डेटा। क्यों फिल्टर नहीं कर सकता? बिकॉज हब कैनॉट रीड मैक एड्रेस, मैक एड्रेस रीड नहीं कर पा रहा है वो, तो इससे क्या होगा, जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस है दे विल गेट दी डेटा, बट ओनली द करेक्ट डिवाइस विल कॉपी दी डेटा। ये तो हब हो गया एक नेटवर्किंग डिवाइस। नाउ द नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस इज स्विच, ठीक है। स्विच इज ऑल्सो, इट इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस टुगेदर। ये दिख रहा है, स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है, एक हार्डवेयर डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस, ठीक है। स्विच के हेल्प से क्या होता है, अभी देखो वाईफाई कनेक्शन जो हमारा है वो राउटर से, राउटर कनेक्शन स्विच में दिया जाता है। अगर तुम्हारा होम में वाईफाई है, यू हैव सीन दिस ना, राउटर से स्विच में कनेक्शन दिया जाता है। स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस टुगेदर, ठीक है। मल्टीपल डिवाइस टुगेदर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्विच के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। स्विच कैन फिल्टर पैकेट, स्विच हब फिल्टर नहीं कर सकता डेटा को, पैकेट्स मीन्स डेटा ओनली, पैकेट, पैकेट का ही स्पेलिंग है। स्विच कैन नॉट, स्विच कैन फिल्टर डेटा, स्विच कैन फिल्टर डेटा बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन, ठीक है। अब डेस्टिनेशन एड्रेस जो भी रहेगा वो बेस पे डेटा को फिल्टर करेगा, ओनली द जो डेस्टिनेशन है विल रिसीव द डेटा, सिर्फ डेस्टिनेशन जो है वही रिसीव करेगा डेटा, बिकॉज स्विच कैन फिल्टर द डेटा। स्विच कैन रीड मैक एड्रेस ऑल्सो, अगर वो फिल्टर कर सकता है डेटा तो इट कैन रीड मैक एड्रेस, मैक एड्रेस, इट कैन रीड मैक एड्रेस, देयरफॉर इट विल ट्रांसफर डेटा टू द करेक्ट डिवाइस, ठीक है, नॉट टू ऑल द कनेक्टेड डिवाइसेस। सी, switch can read MAC address, therefore it will transfer data to the correct device but not to all the connected devices, ठीक है। तो स्विच क्या है, इंटेलिजेंट नेटवर्किंग डिवाइस है that can filter the data, that means it can read MAC address, therefore it will transfer data to the correct device, correct but not to all the कनेक्टेड डिवाइसेस, सबके पास नहीं जाएगा। सी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, अगर ए को लास्ट वाले कंप्यूटर पे सेंड करना है तो वही डायरेक्ट जाएगा, ऐसा नहीं कि बी सी डी सबके पास जाएगा, नहीं, ठीक है। ये स्विच क्या कर सकता है, स्विच कैन रीड, ये नेटवर्किंग डिवाइस के पास क्या कैपेबिलिटी है, इट कैन रीड द मैक एड्रेस, ठीक है। देन द नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस इज राउटर। राउटर भी एक, इट इज नेटवर्क डिवाइस ओनली, ठीक है। राउटर्स की हेल्प से देखो क्या होता है, विद राउटर इज अ डिवाइस दैट रिसीव्स द डेटा, ठीक है, रिसीव्स द डेटा एंड देन क्या करता है, डेटा को वो अपने डेस्टिनेशन में क्या करता है, ये करता है, मतलब सेंड करता है जो भी डेस्टिनेशन है। द राउटर इज अ डिवाइस दैट रिसीव्स एंड एनालाइजेस डेटा एंड देन रूट देम टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, डेटा को रिसीव करना, उसको एनालाइज करना और फिर उसको रूट देम टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन की तरफ उसको वो रूट ट्रैवल करवाता है, समझ रहे हो, डेस्टिनेशन के थ्रू क्या करता है, ट्रैवल करवाता है। सो राउटर्स आर रिक्वायर्ड ऑन, व्हाई राउटर्स आर रिक्वायर्ड, सी, राउटर्स आर रिक्वायर्ड ऑन इंटरनेट टू रीड आईपी एड्रेस। राउटर्स क्यों रिक्वायर्ड है इंटरनेट पे, आईपी एड्रेस रीड करने के लिए। व्हाट इज आईपी एड्रेस, इंटरनेट फुल फॉर्म क्या, आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये यूनिक एड्रेस होता है डिवाइसेस का, जैसे लाइक हम, हमारा मोबाइल नंबर यूनिक है, ठीक है, वैसे आईपी एड्रेस डिवाइस जो है जो डिवाइसेस है हमारे कंप्यूटर लैपटॉप
उसके सबके आईपी एड्रेस होते हैं, ठीक है। ईच डिवाइस इज हैविंग यूनिक आईपी, यूनिक एड्रेस, वो एड्रेस को हम लोग बोलते हैं आईपी, ठीक है। आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो सी व्हाई राउटर इज रिक्वायर्ड, why routers are required. Routers are required और internet to read IP address, IP address read करने के लिए routers are required on internet to read IP address. Okay. So with the help of routers, routers are used to connect to the network. In simple words, we can say routers are used to connect to the network. Next networking device is repeater. Okay. So repeater it is a network device only. इसका क्या फंक्शन है रिपीटर का? रिपीटर का काम ये है, इट इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस दैट रीजनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम्स टू वीक और करप्टेड। मतलब क्या करना, सिग्नल जो आता है ना, सिग्नल को रीजनरेट करना, क्योंकि जब सिग्नल डेटा जब ट्रैवल होता है थ्रू सिग्नल, तो समटाइम्स क्या होता है, जो सिग्नल है हमारा वीक हो जाता है, ठीक है। तो सिग्नल को वीक नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग रखने के लिए रिपीटर डिवाइस यूज होता है, ठीक है। रिपीटर क्या करता है, रीजनरेट करता है, इट रीजनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम टू वीक और करप्टेड, ठीक है। तो ये सिग्नल को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग रखता है विद द हेल्प ऑफ रिपीटर, ठीक है। देन रिपीटर का काम ये है, व्हेन द सिग्नल बिकम्स वीक, ठीक है, जब सिग्नल वीक हो जाता है तो क्या करता है, कॉपी करता है, देन दे ये जो है डिवाइस है रिपीटर, ठीक है, व्हेन द सिग्नल बिकम्स वीक दे कॉपी द डेटा, ठीक है, बीट बाय बीट डेटा कॉपी करता है, ठीक है, एंड रीजनरेट करता है उसका ओरिजिनल जो डेटा है, ओरिजिनल डेटा को रीजनरेट करता है, वो पास करता है नेक्स्ट केबल को इन अ नेटवर्क। समझ रहे हो, रिपीटर क्या है, ओनली इट इज a device, communication device that regenerates the signal over the same network before the signal becomes too weak or corrupted. सिग्नल करप्ट होने से पहले, वीक होने से पहले वो क्या करता है, रीजनरेट करता है सिग्नल को। रीजनरेट करता है मीन जब सिग्नल फॉर एग्जांपल अगर वीक हो गया, ठीक है, तो इट विल कॉपी द डेटा बीट बाय बीट। बीट बाय बीट मीन्स, बीट बाय बीट मीन्स सिंगल सिंगल डेटा कॉपी करेगा, ठीक है, सिंगल बीट जैसे 1 फिर 0 या 1 1 जो भी डेटा है, ठीक है। अब बीट बाय बीट इसलिए लिखा है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज दैट इज 1 और 0, ठीक है। तो बीट बाय बीट मीन्स सिंगल सिंगल डेटा वो क्या करता है, कॉपी, व्हेन द सिग्नल बिकम्स वीक दे कॉपी द डेटा बीट बाय बीट एंड रीजनरेट इट एट द ओरिजिनल स्ट्रेंथ, ठीक है। एंड आफ्टर रीजनरेटिंग इट एट द ओरिजिनल स्ट्रेंथ इट विल पास द डेटा टू द नेक्स्ट केबल इन नेटवर्क। नेक्स्ट केबल को पास करेगा, मीन्स जब सिग्नल जो है, मीन्स जब केबल वीक होगा, केबल वीक होने से पहले या करप्ट होने से पहले अगर रिपीटर डिवाइस कनेक्टेड है, रिपीटर क्या करता है, रीजनरेट करता है सिग्नल को, मीन्स डेटा को क्या करेगा, वो कॉपी करके उसका जो नेक्स्ट केबल है उसको नेटवर्क जो नेक्स्ट केबल है उसको डेटा पास करेगा, दैट इज रिपीटर। So these are the networking devices, hub, switch, राउटर, रिपीटर, ये सब क्या है, नेटवर्किंग डिवाइसेस है, ठीक है। अच्छा, मैक एड्रेस, हब, हब कैनॉट फिल्टर डेटा, स्विच कैन फिल्टर डेटा, ठीक है। हब कैनॉट फिल्टर डेटा मीन्स वो मैक एड्रेस भी रीड नहीं कर पाएगा, इतना याद रखना है। कैनॉट फिल्टर डेटा मीन्स डेटा विल बी सेंड टू ऑल द कनेक्टेड डिवाइसेस, ठीक है। डेटा क्या होगा, जितने भी कनेक्टेड, हब कैनॉट फिल्टर डेटा मीन्स डेटा जो है जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस से सबको डेटा जाएगा, इट विल ट्रांसफर डेटा टू ऑल द कनेक्टेड डिवाइसेस। तो डेटा वेस्टेज हो रहा है इसमें, इट विल लीड टू इनएफिशिएंसीज, राइट। स्विच में, व्हाट इज स्विच? Switch is network devices that connects multiple devices together.
It can filter the data. See, filter data means only the correct device will receive the data. Okay, not all the connected devices, only the correct device will receive the data. Okay, so switch can read MAC address. What is MAC address? Hub cannot read MAC address. Switch का जो device it can read MAC address. What is MAC address? Full form of MAC is media access control. मीडिया एक्सेस कंट्रोल. तो मैक क्या है? एक यूनिक मैक इज अ यूनिक एड्रेस, ठीक है, दैट इज असाइन टू जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है हमारे सिस्टम में, एनआईसी. ठीक है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के हेल्प से ही जो हमारा डिवाइस जो कनेक्ट है वो आइडेंटिफाई होता है. जैसे अभी लैन कनेक्शन है हमारा. लैन कनेक्शन, लैन कवर्ड हुआ है क्या? लैन, मैन, वैन, आई थिंक नहीं हुआ है. नहीं हुआ लैन. ओके, अच्छा ठीक है. लैन कनेक्शन मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म में बता रही हूँ मैं. लैन पे एक टॉपिक है. लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क. विद द हेल्प लैन कनेक्शन मीन्स अगर तुम्हारा डिवाइसेस जो है वो कनेक्टेड है एक स्मॉल एरिया में, जैसे कि ऑफिस, बिल्डिंग या कोई कैंपस, ठीक है, तो वो लैन कनेक्शन है, लोकल एरिया नेटवर्क. जैसे हमारा कॉलेज का हो गया, कॉलेज का जो लैब होगा, दैट इज लैन कनेक्शन. ठीक है, जिस लैन का जो कनेक्शन होता है वो उसका फ्यू किलोमीटर्स तक ही साइज होता है. लैन का जो कनेक्शन है वो फ्यू किलोमीटर्स तक ही होता है. जैसे फॉर एग्जांपल वाईफाई. वाईफाई जो है, वाईफाई का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कुछ रेंज तक ही रहेगा. इट इज लिमिटेड टू सम डिस्टेंस ओनली. ठीक है, जो शॉर्टर एरिया के लिए होता है दैट इज लैन कनेक्शन. ठीक है, तो अभी नाउ लिसन दिस. मैक एड्रेस था. मैक एड्रेस एक यूनिक एड्रेस है दैट इज असाइन टू नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को असाइन किया जाता है ताकि जो हमारा डिवाइस है लैन में, हमारे एरिया मतलब एक एरिया में जो हमारा डिवाइस कनेक्टेड है उसको आइडेंटिफाई करता है. तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में मैक एड्रेस रहता है पहले से, ताकि हमारा डिवाइस आइडेंटिफाई हो पाए. इसलिए जो भी क्राइम्स होते हैं, ठीक है, जो साइबर जैसे अभी क्राइम्स जो होते हैं या हैकिंग या कुछ भी तुम क्राइम बोल सकते हो, तो साइबर क्राइम जो डिपार्टमेंट है दे कैन इजीली आइडेंटिफाइड बिकॉज विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस. क्योंकि डिवाइसेस का आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस ये सब होता है, इसलिए जो भी क्राइम्स होते हैं डिवाइसेस के थ्रू, ठीक है, वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं. और ये जो मैक एड्रेस है ना, ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक डिवाइस प्रेजेंट होता है हमारे सिस्टम में, और मैक एड्रेस उसमें स्टोर होता है. ठीक है, तो दिस एड्रेस इज स्टोर्ड इन हार्डवेयर. हमारा जो हार्डवेयर जो पार्ट है उसमें मैक एड्रेस होता है. ठीक है, नाउ सी, हब एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं, यू कैन से ना, इट इज नॉट इंटेलिजेंट डिवाइस. स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है बिकॉज स्विच क्या करता है, डेटा सिर्फ जो करेक्ट डेस्टिनेशन है उसको सेंड करता है, नॉट ऑल द कनेक्टेड डिवाइसेस. The next topic is telecommunication, media और channels. Telecommunication, media और channels. See, telecommunication channels means telecommunication channels के through ही, telecommunication channels are the part of telecommunication network. ठीक है, that connects the message source with the message receiver. अगर तुमको सोर्स को रिसीवर से कनेक्ट होना है, सोर्स में सेंडर एंड रिसीवर यू कैन कंसीडर, सेंडर एंड रिसीवर. ठीक है, अगर इफ द सेंडर वांट्स टू सेंड डेटा टू द रिसीवर,
So that can be happen with the help of telecommunication media or channels. ठीक है. Now see telecommunication, or you can say अभी now we have to see transmission media. ठीक है. Telecommunication रहने दो. You can say telecommunication और transmission media. टेलीकम्युनिकेशन चैनल्स में डिफरेंट ट्रांसमिशन जो है, ट्रांसमिशन मीडिया, इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया. गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया. ठीक है. गाइडेड मीन्स वायर्ड, एंड अनगाइडेड मीन्स वायरलेस. ओके. गाइडेड मीन्स वायर्ड एंड अनगाइडेड मीन्स वायरलेस. So in guided media, different types of connections are given. ठीक है. ट्विस्टेड पैर, यूटीपी, एसटीपी, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल. तो ये ट्विस्टेड पैर, ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल है. ठीक है. वायर्ड कनेक्शन, गाइडेड मीडिया मीन्स वायर्ड, अनगाइडेड मीन्स वायरलेस. तो वायर्ड में कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स दिए हुए. ठीक है. ये वायर्ड कनेक्शन है ना, तो ये केबल्स के टाइप है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल. ट्विस्टेड पैर, यूटीपी, एसटीपी, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल. अनगाइडेड मीडिया मीन्स वायरलेस कनेक्शन जो होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स है ऑफ अनगाइडेड मीडिया. रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड. What is transmission media? See, in data communication means the sender और receiver जो नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, that is data communication. Data communication, it is a combination of hardware and software. Data communication जो है combination of hardware and software. ठीक है. combination हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मीन्स विद द हेल्प ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. ठीक है. सी सिंपल टर्म्स में हम लोग ये बोल सकते हैं, डेटा कम्युनिकेशन एक कॉम्बिनेशन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, उसके हेल्प से हम लोग वी कैन गेट कनेक्टेड टू दी नेटवर्क. ओके. देन ट्रांसमिशन मीडिया. व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडिया? इट इज अ पाथवे दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. एक पाथ है. सी सेंडर टू रिसीवर जब डेटा ये होता है, सेंड होता है, सेंडर टू रिसीवर डेटा जब तुमको सेंड करना है तो कुछ तो पाथ होगा ना बीच में. ठीक है. कोई तो वे रहेगा ना, वे के थ्रू जाएगा. तो ट्रांसमिशन मीडिया एक पाथवे है दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. अभी सी वाईफाई कनेक्टिविटी हाउ वी आर गेटिंग हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर लैपटॉप में, बिकॉज द केबल इज कनेक्टेड ना. केबल है एक, इथरनेट केबल बोलते हैं उसको हम लोग, इथरनेट केबल. तो वो एक पाथवे है, राइट. तो ट्रांसमिशन मीडिया का मीन्स क्या? इट इज अ पाथवे दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. ठीक है. वी यूज द केबल्स जो होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के केबल होते हैं, सब केबल्स के डिफरेंट टाइप्स से. वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स और वेव्स टू ट्रांसमिट डेटा. वेव्स मीन्स जो ये होता है अनगाइडेड होता है. ठीक है. वायरलेस जो होता है. ठीक है. तो डेटा इज ट्रांसमिटेड नॉर्मली थ्रू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स. तो जो ट्रांसमिशन मीडिया है उसका डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है? थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं उसके थ्रू डेटा क्या होता है? ट्रांसमिट होता है. दैट इज ऑल अबाउट व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडिया. Now the classification of transmission media. Transmission media is divided into two types. It is classified into two types, guided and unguided. Guided means wired connection and unguided means wireless. Okay. गाइडेड के टाइप्स क्या है? ट्विस्टेड पैर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल. अनगाइडेड में फ्री स्पेस लिखा है, बट हम लोग को ये टाइप्स देखना है, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव्स. ठीक है. माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव्स.
Till now, is it clear to all what we have studied? Till now, what we have covered? Advantages of computer network and different devices of different networking devices. Yes. So we all are writing yes in the chat box. Okay. Very good. अच्छी बात है. So now we have to see a transmission, different types of transmission media. Okay. So in that we have to see wired and wireless, both type of connections.